Hi students, a warm good morning to all of you. Today, let's see the chapter birth of snapshot, seventh chapter in your snapshot, that is birth. But before starting my class, let me tell you once again, as you got the message in the group, from 30 November, that is from Monday onwards, we'll be having your unit test. We decided to take a small unit test for you to see how well you are prepared with your questions or the chapters taken, how serious you are regarding the studies, and hope all of you got the timetable. The time will be 9:30 to 11 o'clock and 9:30 to 11 a.m. And one more thing I have to do, the syllabus, all the teachers will be sharing it in the group today. For English, I'll send you the syllabus as an attachment in the group, but now still those who are viewing the video, you can break it down. From the composition part, we'll be having speech and debate, long composition, speech and debate. And in chapters, Mother's Day, Albert Einstein to School, that is from Snapshot book, and from Hornbill, Browning version, and the Ailing Planet, the Green Movement. So I'll repeat the syllabus once again. From composition part, speech and debate. In the literature part, from Snapshot, Mother's Day and Albert Einstein at School. Two chapters, that is Mother's Day and Albert Einstein at School. And from Hornbill, Browning version and the Ailing Planet. So total 4 chapters from literature and composition, 2 things, that is speech and debate. So it's the syllabus. So marking will be 25 marks, and timing 90 minutes, that is 1.5 hours, 1 hour 30 minutes, starting from 9:30 to 11 o'clock. One more thing you have to note that इस बार आप लोगों को ग्रुप में सॉफ्ट कॉपी भेजने की जरूरत नहीं है. You have to submit the copy in the school the same day or the next day. तो स्कूल एग्जाम खत्म होने के उस टाइम से या नेक्स्ट डे के अंदर आपको ये स्कूल में फीस काउंटर के पास बॉक्स होगा, उधर आपको ड्रॉप उसमें रखना है द पेपर्स. ओके, तो अगर आज कोई पेपर हुआ तो उस आज या नेक्स्ट डे के बाद उस पेपर को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे. So you have to deposit here, you have to submit here in the box which will be kept outside Sciences office C section के बाहर, जो आपका क्लास का नाम लिखकर पेपर होगा. एंड आपका एग्जाम जो प्रीवियस एग्जाम हुआ था उसमें जो गलती आप लोगों ने किया है, दैट इज मेंशन नहीं किया आपका नाम, क्लास. तो बीवेयर, बी अलर्ट, आपका पेपर में आपका नाम, क्लास और सब्जेक्ट क्लियरली मेंशन होना चाहिए. अगर किसी ने सब बिना नाम का दिया तो मार्क्स आपको नहीं मिलेगा. So everything is clear. So you have to submit your copy in the school this time. और जरूरी नहीं है कि स्टूडेंट्स ही आए, आप किसी द्वारा पहुंचा सकते हैं स्कूल. जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स आना है या यूनिफॉर्म में आना है, ऐसा कुछ नहीं है. यू कैन send it through somebody, if your father or somebody is coming over this side, आप उनके थ्रू भेज सकते हैं. जरूरी नहीं है आप स्कूल आना है. और आपको इस टेस्ट के बारे में किसी भी तरह का डाउट हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, कैन आस्क अबाउट इट एंड क्लियर योर डाउट. ओके, अपने मर्जी से कुछ मत करना. पेपर में एक और बार समझा रहा हूँ, 25 मार्क्स का होगा, 1.5 घंटे का. ओके, होप एवरीथिंग इज क्लियर. सो लेट्स सी द न्यू चैप्टर बर्थ. तो ये बर्थ एक चैप्टर ये है, इसमें एक डॉक्टर है, इसका नाम है एंड्रयू. वो अपना कैरियर में एक सबसे अहम, ये अपने लाइफ को ही चेंज करने वाले एक डे के बारे में मेंशन कर रहा है. वो क्या होता है, मतलब अपने गर्लफ्रेंड के साथ लड़ाई होने के बाद वो बहुत टेंशन में होता है. तो उस दिन एक पेशेंट आते हैं, उनका वाइफ के डिलीवरी केस के लेके. बहुत सालों बाद उनका वाइफ प्रेग्नेंट हुआ है और इसीलिए, और वो लोग बहुत कंसर्न्ड थे इस डिलीवरी के बारे में. तो उन्होंने एंड्रयू को, जो मॉर्गन पापा का नाम है,
एंड्रू को ये केस सौंपा। तो एंड्रू ऑलरेडी दिमाग खराब है, फिर भी उन्होंने सोचा कि केस हैंडल करते हैं। और बाद में क्या हुआ, मतलब सिंपल चीज से हुआ। द थिंग इज दैट ये फैमिली दैट इज इसमें बता रहा है, द मदर, द फादर एंड ग्रैंड मदर भी है इस चैप्टर में, बहुत बहुत एंशियसली वेट कर रहे हैं, बहुत मतलब बहुत ही मतलब इतने साल बाद एक बच्चे आ रहे हैं उनके फैमिली में, इसलिए इतना एक्साइटेड है। बट क्या होता है मतलब बैड, अनफॉर्चुनेटली बैड लक की बात यह है कि बच्चे डिलीवरी होने के बाद इट वॉज लाइफलेस, मतलब उसमें जान नहीं था। तो डॉक्टर ने देखा कि इसका बॉडी, आपको मालूम है ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का फ्लो नहीं है इसको बॉडी में, पूरा बॉडी पैरालाइज जैसा, मतलब लटक रहे थे, सिर ऐसे लटक रहे थे, हाथ ऐसे थे, उसमें ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो रहा था, ऑक्सीजन फ्लो नहीं हो रहा था। तो ऑलमोस्ट डेड रूप में मिला था उसको। तो डॉक्टर ने सोचा, कोई और डॉक्टर तो उसको ऐसे ही मर गया बोलकर छोड़ देते, बट डॉक्टर ने कहीं अपने स्टडीज के टाइम पे किसी चैरिटी वर्क के लिए गया तो इस तरह का एक केस उनके मन में याद आया, उन्होंने ऐसे केस हैंडल किया था। तो उन्होंने सोचा कि ऑलरेडी बच्चे लाइफलेस जैसा है, तो क्यों ना एक कोशिश करें इसको लाइफ लाने के लिए। तो उन्होंने अपने पास नर्स थे, सिस्टर थे, मतलब मिडवाइफ जो नर्सिंग असिस्टेंट थे, उनसे बोला गर्म पानी और ठंडा पानी लाने के लिए। और जो दो बेसिन में, एक में ठंडा पानी एक गर्म पानी डाला, और बार बार इसमें पहले ठंडा पानी पहले गर्म पानी में डालकर इसका बॉडी का टेम्परेचर को वेरिएशन करने का कोशिश किया, और बात बहुत जोर से दबाया दबाया दबाया। और ये है कि जादू की बात हुआ कि थोड़ी देर की बहुत खतरनाक तरह से, बहुत बुरी तरह से कोशिश करने के बाद एट लास्ट ये बच्चे के में जान आ गया। वो इसके लाइफ का सबसे एक इम्पोर्टेंट डे था। तो इसके बारे में एक चैप्टर, लेट्स सी द चैप्टर। तो चैप्टर का थ्रेड लाइन कुछ नहीं है, एक बच्चे का बर्थ के अराउंड है, बच्चे जो डेथ पाया जाता है उसको बर्थ में लापत लाके जान दिया इस डॉक्टर, द डॉक्टर का नाम है एंड्रयू। So, though it was, so the writer is age according, though it was nearly midnight when Andrew reached Bringover, तो एंड्रू जब ब्रिंगोवर पहुंचा था बहुत रात हो गया था। He found Joe Morgan waiting for him, तो देखा कि जो मॉर्गन, मैंने बोला पेशेंट के हस्बैंड है या जो आने वाले बच्चे के, पैदा होने वाले बच्चे के पापा, जो मॉर्गन वेटिंग फॉर हिम, वॉकिंग अप एंड डाउन विथ शॉर्ट स्टेप्स बिटवीन द क्लोज सर्जरी। अपना जो मॉर्गन एंड्रू के घर के पास जो पेशेंट को देखने का रूम है उसके बाहर उनको वेट करते हुए जो मॉर्गन खड़ा था, जो इस बच्चे मतलब उस पेशेंट के हस्बैंड थे। एंड द एंट्रेंस टू द हाउस, एट द साइट ऑफ हिम द बर्ली, बर्ली मतलब हट्टा कट्टा ड्रिलर फेस एक्सप्रेस रिलीफ। तो ये डॉक्टर को देखते ही, कभी कभी हम मालूम है हमें, हम तबीयत खराब होकर जाते हैं, डॉक्टर नहीं है तो बहुत उदास होते हैं, और डॉक्टर का चेहरा देखते हैं हमें बहुत रिलीफ फील होता है। इधर जो मॉर्गन बहुत देर से डॉक्टर के लिए वेट कर रहे हैं, और जब डॉक्टर को देखा तो उनको बहुत रिलीफ हो गया, वो रिलीव्ड हो गया। है डॉक्टर, आई एम ग्लैड टू सी यू, बहुत खुश हो गया आपसे मिलके। आई हैव बीन बैक एंड फॉरवर्ड हियर दिस लास्ट आवर, मैं बहुत बार आके गया इधर आपको ढूंढ के। द मिसेस, मेरा वाइफ वांट्स यू बिफोर टाइम, आपको डिलीवरी केस अटेंड करने के लिए मेरा वाइफ आपको पास चाहते हैं, आपका ट्रीटमेंट चाहते हैं। एंड यू अब्रप्टली, मतलब एकदम से रिकॉल्ड फ्रॉम दी कंटेम्पटेशन ऑफ हिज ओन अफेयर, वो किसी और सोच में थे, एकदम से सोच में से उठ गया वो। टोल्ड मॉर्गन टू वेट, बोला मॉर्गन ठीक है आप बाहर वेट करो। ही वेंट इनटू द हाउस फॉर हिज बैग, और वो अंदर गया अपना बैग लेके आया। देन टुगेदर दे सेट आउट फॉर नंबर 20 ब्लेना टेरेस, तो उन्होंने जो मॉर्गन का एड्रेस है दैट इज नंबर 20 ब्लेना टेरेस की तरफ रवाना हुआ। क्यों रवाना हुआ? तो जो मॉर्गन के वाइफ का डिलीवरी केस अटेंड करने के लिए एंड्रयू को बुलाने आए थे वो। अब इट्स क्लियर, दी लाइट एयर वॉज कूल एंड डीप विथ क्वाइट मिस्ट्री, तो हवा हल्के से चल रहे थे और मतलब ऐसे लग रहा है कि कुछ सीक्रेट छुपा हो उस हवा में, ऐसे बह रहे थे वो। यूजुअली सो परसेप्टिव, नॉर्मली सब समझ सकते हैं इस टाइम का हवा के बारे में, बट अभी पता नहीं किस, ऐसे लग रहा है कि कुछ अजीब तरह का हवा बह रहा है, तो मिस्ट्री है। एंड्रयू ने फेल डल, एंड्रयू थोड़ा अपना दिमाग थोड़ा खराब था उनका, मतलब मूड सही नहीं था। एंड लिस्टलेस, मतलब थोड़ा अनहैप्पी थे। ही हैड नो प्रीमोनिशन, उन्होंने पहले सोचा नहीं, प्रीमोनिशन मतलब पहले सोचा नहीं था, एक फोर नॉलेज प्रीमोनिशन दैट
दिस नाइट मैट वुड प्रूव अनयूजुअल, उन्होंने कभी भी सोचा नहीं था कि ये नाइट उनके लिए अनयूजुअल होगा। स्टिल दैट इट विल इन्फ्लुएंस हिज होल फ्यूचर इन ब्लैनेली, और ब्लैनेली का अपना फ्यूचर का पूरा लाइफ को ये असर लाएगा, ऐसा एक नाइट होगा, उन्होंने कभी सोचा नहीं था। तो इस नाइट का खासियत मैंने ऑलरेडी चैप्टर में समरी में बता दिया। देखते आगे किस तरह क्या होता है और कैसे वो इस कंडीशन को हैंडल करते हैं। द टू मैन वॉक्ड इन साइलेंस अंटिल दे रीच द डोर ऑफ नंबर 12। तो दोनों साइलेंस थे। साइलेंट का मेन रीजन है कि एक आदमी बहुत टेंशन था अपने वाइफ का डिलीवरी केस के लिए, और दूसरा आदमी ऑलरेडी बहुत टायर्ड थे और अनहैप्पी थे, क्योंकि अब मैंने बता दिया उनका गर्लफ्रेंड के साथ थोड़ा लड़ाई हो गया था। नंबर 20, तो घर पहुंचा। देन जो ड्रू अप शॉट, फिर जो अंदर जाने की हिम्मत नहीं था उन्होंने, वो बाहर ही रहा और डॉक्टर को अंदर जाने का परमिशन दिया या अंदर जाने के लिए बोला। आई विल नॉट कम इन, ही सेड, वो बोला कि मैं अंदर नहीं आने वाला। एंड हिज वॉइस शोड साइंस ऑफ स्ट्रेन, और उसके वॉइस में स्ट्रेन था, मतलब टेंशन था इस केस के वजह से, डिलीवरी केस की वजह से। बट मैन आई नो यू विल डू वेल फॉर अस, बट डॉक्टर मुझे आप पर पूरा विश्वास है, आप मेरे लिए काम करोगे अच्छी तरह। इनसाइड ए नैरो स्टेयर लेड अप टू ए स्मॉल बेडरूम, तो डॉक्टर अंदर गया, छोटा सा स्टेयर केस था ऊपर की तरफ, एक बेडरूम की तरफ। क्लीन बट पुअरली फर्निश, वो बेडरूम बहुत क्लीन था बट इतना अच्छा फर्निशिंग नहीं था, मतलब ये जॉन मॉर्गन इतना अमीर आदमी नहीं था। एंड इट लिट ओनली बाय एन ऑयल लैम्प, और उधर रोशनी, एक ऑयल लैम्प का रोशनी चलता। हियर मिसिस मॉर्गन मदर, तो उधर कौन कौन थे देखो, जॉन मॉर्गन के मदर थे, ए टॉल ग्रे हेयर्ड वुमन ऑफ नियरली 70 साल के औरत, मतलब इस पेशेंट के मदर इन लॉ। एंड द स्टाउट एल्डरली मिडवाइफ, मिडवाइफ मतलब एल्डरली मतलब थोड़ा एज नर्स, हॉस्पिटल में गया वो लोगों को मालूम है नर्स या सिस्टर कौन होता है, वेटेड बिसाइड द पेशेंट। तो 3 लोग थे इधर, एक तो पेशेंट के मदर इन लॉ और वो मिडवाइफ। वॉचिंग एंड्रूज एक्सप्रेशन एज ही मूव्ड अबाउट द रूम, जब वो रूम के अंदर आया तो तीनों एंशियसली देख रहे थे एंड्रू को। अब ऑल ऑफ यू नो वो एंड्रू इज द डॉक्टर। ओके, लेट मी मेक यू ए कप ऑफ टी। डॉक्टर बैश मतलब डॉक्टर बैचलर के लिए बोलता है, डॉक्टर मैं आपके लिए एक कप टी बना के लाता हूँ। सेट द फॉर्मर क्विकली आफ्टर फ्यू मोमेंट, कुछ टाइम के बाद वो औरत बोले मैं चाय लेके आता हूँ, क्योंकि वो औरत बड़ा क्लेवर थे, चाय बनाकर उनको लगा कि ये डॉक्टर अभी वापस जा सकते हैं, तो उनको रोकने के लिए औरत ने बोला मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। ओके, वाट आवर दी। एंड्रू स्माइल फेनली, हल्का सा स्माइल आ गया उसके चेहरे पे। ही सो दैट द ओल्ड मैन, उनको लगा कि ओल्ड वुमन वाइज इन एक्सपीरियंस, बहुत साल के एक्सपीरियंस है, रियलाइज देयर मस्ट बी ए पीरियड ऑफ वेटिंग, शायद हो सकता है इस डिलीवरी केस के लिए कुछ टाइम लगेगा। दैट शी वॉज एफ्रेड ही वुड लीव द केस, उनको लग रहा था कि ये केस छोड़ के चले जाएगा, घर जाने के थोड़ी देर बाद आने के लिए बोले तो थोड़ा डेंजर है, इसलिए उनको उधर ही रोकने के लिए उन्होंने बोला मैं चाय बना के लाती हूँ। सेइंग ही वुड रिटर्न लेटर। डोंट फ्रेट मदर, डोंट फ्रेट मतलब डोंट वरी, चिंता की मत छोड़ दो मम्मी, मदर आई विल नॉट रन अवे, मैं जाने वाला नहीं हूँ। डाउन इन द किचन ही ड्रैंक द टी विच शी गेव हिम, तो किचन में गया नीचे, वो ग्रैंडमदर उनको चाय बना के दी और वो पीछे बैठे उधर। ओवरऑट एज ही वाज, ओवरऑट मतलब वेरी टायर्ड ही वाज, दिन भर का काम के बाद वो टायर्ड हो गए थे। ही न्यू ही कुड नॉट स्नैच इवन एन आवर स्लीप इफ ही वेंट आउट, उनको मालूम था कि अगर घर जाएगा तो 1 घंटे का भी स्लीप नहीं मिलेगा, उसके पहले इधर वापस आना पड़ेगा, तो अच्छा है इधर ही रहे। He knew too that the case here would demand all his attention, और ये उनको ये भी मालूम था कि इधर जो ये केस है प्रेग्नेंट केस, इनका पूरा अटेंशन इधर ही चाहिए, तो घर जाने का रिस्की है, इधर ही रहे, घर जाएगा तो 1 घंटे का भी स्लीप नहीं मिल सकता, और ये भी नहीं, इस केस के लिए पूरा अटेंशन चाहिए। एक क्वीर लिथार्जी, एक क्वीर मतलब एक स्ट्रेंज केस विदाउट एनर्जी, मतलब एक टायर्डनेस आ गया उसमें, और स्पिरिट केम अपॉन हिम, ही डिसाइडेड टू रिमेन अंटिल एवरीथिंग वाज ओवर, और सब कुछ खत्म होने तक उधर वेट करने के लिए सोचा वो। एन आवर लेटर ही वेंट अपस्टेयर्स, तो 1 घंटा उधर रुका, उसके बाद वो ऊपर चले गया देखने के लिए कि पेशेंट का कंडीशन क्या है। एन आवर लेटर ही वेंट अपस्टेयर्स अगेन, नोटेड द प्रोग्रेस मेड, देखा कि कैसे है पेशेंट का कंडीशन। केम डाउन वंस मोर, और एक और बार नीचे आया, सैट बाय द किचन फायर, और किचन फायर के साथ बैठा हुआ।
मतलब उनको लगा कि और टाइम लगेगा। इट वॉज स्टिल एक्सेप्ट फॉर द रसल ऑफ ए सिंडर। सिंडर मतलब जो फायर प्लेस होते हैं रूम में, उसके अंदर कोल टूटने का वो आवाज़ है। लास्ट को आपको मालूम है रात के 1 बजे 2 बजे 3 बजे बिल्कुल साइलेंस रहता है, एक एक छोटा छोटा आवाज़ भी हमें पता लगता है। तो फायर प्लेस के अंदर जो कोयला जल रहे थे उसका टूटने का आवाज़ आ रहा था। फिर और आवाज़ से एंड द स्लो टिक टॉक ऑफ द वॉल क्लॉक। और कभी कभी रात को जो लोग पढ़ाई करते हैं तो पता है बिल्कुल हल्का सा क्लॉक का आवाज़ भी सुनाई देते हैं हमें। नो, और एक आवाज़ था उधर, देयर वॉज अनदर साउंड, द बीट ऑफ मॉर्गन फुटस्टेप। एक और आवाज़ था बाहर इस बच्चे के पापा का फुटस्टेप का आवाज़, वो टेंशन में इधर उधर चलने का फुटस्टेप के आवाज़। एज ही पेस इन द स्ट्रीट आउटसाइड, द ओल्ड वुमन ऑपोजिट हिम सैट इन अ ब्लैक ड्रेस। तो जो इस पेशेंट के ग्रैंडमदर थे वो ब्लैक ड्रेस में उधर खड़े, शी वाज स्टैंडिंग देयर quite motionless. She was motionless there. She was praying, her eyes strangely alive and wise, probing never leaving his age. और strangely alive, और उनका आंखें खोल के मतलब खोला हुआ था, looking at the doctor. probing मतलब looking, और डॉक्टर के चेहरे पे देख रहे थे, कभी छोड़ नहीं रहा था डॉक्टर के, मतलब डॉक्टर के एक एक एक्शन को देख रहे थे वो। तो इस समय क्या हुआ, अब डॉक्टर वो अपने सोच में चला जाता है। His thoughts were heavy, बहुत गहरा सोच में चला गया वो। मडल्ड मतलब ट्रबल्ड सोच आ गया दिमाग में टाइम पे। द एपिसोड ही हैड विटनेस्ड एट कार्डिफ स्टेशन, देखो मैंने बताया गर्लफ्रेंड के साथ लड़ाई हो गया था तो उसको वो सीन सोचने लग गया वो। ही हैड विटनेस्ड एट कार्डिफ स्टेशन स्टिल ऑब्सेस्ड हिम, ऑब्सेस्ड मतलब उनको ट्रबल किया, बुरी तरह उसके दिमाग में आ गया। हिम फ्रॉम मॉर्बिडली, मॉर्बिड मतलब वेरी बैडली। ही थॉट ऑफ, तो उस समय ना उनको इसका सोच में कुछ फेल्ड मैरिज केसेस आने लग गया, कुछ केसेस ऑफ मैरिज जो फेल्ड था, तो उनको लगा कि मैरिज बहुत ही बुरी चीज है और मैरिज शादी नहीं करना चाहिए। शादी का कुछ फेलियर केसेस उनके दिमाग में आ गया। कौन कौन सा कि सॉरी कि थॉट ऑफ ब्रामवेल, ब्रामवेल एक आदमी है, foolishly devoted to a woman who deceived him morbidly। तो एक ब्रामवेल नाम एक आदमी के बारे में सोचा जिनके वाइफ ने उसको डिसीव किया, मतलब चीटिंग किया, वो डिसीव्ड हिम। वो ब्रामवेल पूरी तरह डिवोटेड था, प्यार करते थे अपने वाइफ से, बट वो वाइफ उनको चीटिंग करके चला गया, तो और मतलब वेरी सेल्फिशली। फिर एडवर्ड पेज नाम के एक आदमी के बारे में सोचा, बाउंड टू द सर्विस बिडविन मतलब ब्लॉडविन, ब्रॉडविन नाम के एक औरत से, वो जो हमेशा लड़ाकू है, इस लड़ाकू औरत से को बहुत से अपना रिश्ता रखा है, बहुत बाउंड मतलब बहुत गहरा प्यार करते हैं ब्रॉडविन नाम के औरत से जो बहुत ही लड़ाकू है, लड़ाई करते रहते हमेशा। फर्स्ट वाला एक ब्रामवेल जो एक फूल जैसा अपने आप को समर्पित किया है एक वुमन से जिन्होंने बहुत सेल्फिशली इनको धोखा दिया है। सेकंड, एडवर्ड पेज नाम के आदमी के बारे में सोच आया जो लड़ाकू हमेशा लड़ाई करने वाले ब्रॉडविन नाम के एक औरत से प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और तीसरा अब डेनी, तीसरा एक आदमी है डेनी, लिविंग अनहैप्पीली, बहुत अनहैप्पीली रहते हैं अपार्ट फ्रॉम हिज वाइफ, वाइफ छोड़ के चला गया इसलिए उसको दुख के साथ रहती है। तो 3 कैरेक्टर के बाद में सोचने लग गया वो, ये सोचने लग गया, ये 3 कैरेक्टर का एग्जाम्पल लेकर वो सोचने लग गया कि शादी करना बहुत बुरी चीज है। His reason told him that all these marriages were dismal failures, बहुत बुरा फेलियर है ये सब मैरिजेस, और शादी करना बेवकूफ़ी है, ऐसे सोचने लगे वो ये सब देख के। It was a conclusion which in his present state made him wince, और ये अपना प्रेजेंट कंडीशन मतलब ये उनका गर्लफ्रेंड के साथ लड़ाई करने के बाद इस कंक्लूजन में आया वो, और वो उसको टेंशन आने लगी। मतलब अभी तक तो गर्लफ्रेंड से अच्छा रिलेशन था तो शादी को वो अच्छा मानते थे, बट जब शादी के बाद ये सब, शादी नहीं लड़ाई आने के बाद ये सब केसेस भी उनके सामने आया तो वो बहुत ही टेंशन होने लग गया वो सोच के। He wished to consider marriage as an idyllic state, वो हमेशा शादी को अच्छा चीज सोचते थे क्योंकि उनके सामने उनके अच्छा गर्लफ्रेंड थे लड़ाई करने से पहले तक, आज से पहले तक। Yes, he could not otherwise consider with the image of Christian before him, क्रिश्चियन है उनके गर्लफ्रेंड का नाम, क्रिश्चियन को सामने रखते हुए शादी को एक फेलियर मानने के लिए कभी रेडी नहीं थे वो आज से पहले।
her eyes shining towards him admitted no other conclusion. उसके चमकने वाले उसकी प्यारे आंखों के सामने वो और किसी तरह का नतीजे में पहुंचने के लिए रेडी नहीं थे. It was a conflict between his level और उनका दो तरह का सोच, doubting mind शक करने वाला mind and his overflowing heart. और एक तो वो शक कर रहे हैं शादी के और इस तरह का शादी रिश्ते के बारे में, दूसरा उसका प्यार भरा हुआ माइंड, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है. Which left him resentful and confused. और इस वजह से एक तो उनको क्रिश्चियन के प्रति बहुत सारा प्यार है, दूसरा वो डाउटफुल है. तो ये दोनों के बीच में उनको लग रहा है कि शादी के मतलब एक कंफ्यूजन में हो रहा है वो. He let his chin sink upon his chest और अपना चिन को चेस्ट पे रेस्ट करके लेट मतलब पैर को सीधा रख के कुर्सी पे बैठ के सोच रहे थे ये सब चीजें. Stretched out his legs, stared broodingly. broodingly मतलब गहरा सोच में रहते वो बैठे थे वो कुर्सी पे. He remained like this so long. बहुत देर तक वो ऐसे बैठे रहा. And his thoughts were so filled with Christian. और पूरे सोच में क्रिश्चियन थे. क्रिश्चियन मतलब उनके गर्लफ्रेंड. That he started, पर एकदम से चौंक गया when the old woman opposite suddenly addressed him. तो वो ऐसा सोच में चला गया था कि जब वो ओल्ड वुमन को बुला तो वो एकदम से चौंक गया. Her meditation had pursued a different course. तो औरत का सोच एक अलग तरह से चला गया था. क्या सोच था उसका वो अभी हम आगे के अगले दिन में देखते हैं. तो once again I would like to remind you about the unit test. Prepare well and write your own answers. Don't try to use your copy book or your Google for writing your answers. Write your own answer. Let it be wrong, no problem, but be sincere towards your studies. Okay, thank you. Have a nice day.